तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे। देखते हैं, इंतजार कर रहे हैं। सर, कहाँ कमी लगता है रह गई है? अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने ये एक लाइन बोली तो इसमें मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, एसआईआर के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। अब आने वाले घंटों में देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने इफेक्टिव हैं। So BJP is saying that this is just an excuse which the Congress party is making. I'm not even talking about any party right now. The contest is directly between the Election Commission of India and the people of Bihar. And let's see who wins. Sir, in fact, they are also blaming the Congress party, stating that... As I said, I'm not even talking about parties. I'm talking about a direct, straight contest between Gyanesh Kumar Gupta and the people of Bihar. अच्छा सर, अब तक के जो परिणाम है, खेड़ा जी आप कैसे देखते हैं इन रुझानों को? क्या आप मानते हैं कि Well, I'm saying it directly. Indirectly you're saying. Well, I'm saying it directly. Okay. There was a book we all read as children, To Serve with Love. So this is a book written by Gyanesh Gupta for Mr. Modi. सर, हिंदी में जानेंगे कि ये जो रुझान है, आपको लगता है कि ये अब महागठबंधन पिछड़ गया है, हार मानते हैं आप? नहीं, अभी शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन इंतजार करते हैं। आप चुनावी मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, मैं कोई लाग लपेट के साथ नहीं बोल रहा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि शुरुआती रुझान पिछले 2-2.5 घंटे के रुझानों में ऐसा अभी देखने को प्रतीत हो रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता बिहार की जनता पर भारी पड़ रहे हैं। हो सकता है बिहार की जनता जीते। Sir, before the elections, HM had claimed that they are going to get 160 to 180 seats. They are nearing to So, that I mean, goal. that proves what I just said. That only endorses what I just said. सर, अब आगे क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि ज्ञानेश कुमार पे डायरेक्ट जो है वो आपने आरोप लगाया है। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो कितने इफेक्टिव हैं जो वो कर रहे हैं। Well, this is a binary that Pawan Khera has drawn, Gaurav Bhatia. If the opposition in Bihar does not win, it is Gyanesh Kumar's victory, which is the Election Commission's victory. NDA is not even in the picture. The contest is not between the Mahagathbandhan and the NDA. It is actually between either victory for Mahagathbandhan or Election Commission is biased. How do you see this binary? Let us first see the victory in the right light. It is a democracy of India which is won. It is a victory of Shri Narendra Modi ji's leadership. It is a victory of Nitish Kumar's good governance. And Navika, I must say that even when the trends have not crystallized into results, the naysayers, the mourners, the perpetually pessimistic Congress party has come out trying to do what they do the best. Blame the constitutional bodies of India, the Election Commission of India. But I would urge you today, focus on the victory of democracy. People of Bihar came out in large numbers to vote, to exercise their right. And just because the Congress party wants to spoil the party, we should not even give them any airtime to do so. I would like to make a few points, if you permit. First, this is a victory of good governance over Jungle Raj. This is a victory of women empowerment, where women of the weakest section are empowered by Shri Narendra Modi ji, over just empowering women of your own house, like Rabdi Devi, Misa Bharti, Priyanka Gandhi Vadra and Sonia Gandhi. This is a victory of people of Bihar who have sent out a loud and clear message that we idolize Karpuri Thakur ji and Shahabuddin can never be our idol. This is a victory of all these schemes that have been working on the ground in Bihar. And I want to ask today,
if the Congress party felt that this is not a level playing field, why in the morning, even on your channel, the Congress spokespersons were sounding very optimistic that they are going to sweep the elections? Just 1.5, 2 hours into the counting, and now they come out blaming the Election Commission of India. This is unacceptable. Bhatia, you know that aadat se majboor hain. They have not been the best of losers. They've never been able to take it in their stride. So moods change as the numbers change. But joining me this morning, Manoj Bharti, Bihar president of the Jan Suraj Party. Manoj Bharti ji, thank you very much for joining me. लेकिन इस वक्त थोड़ा सा सन्नाटा है जन सुराज पार्टी के दफ्तरों में, प्रशांत किशोर जी के आंगन में। मैं पूछना चाहती हूं, क्या इस तरह का नतीजा आपने एक्सपेक्ट किया था, या फिर जिस दिन प्रशांत किशोर जी ने तय किया कि वो चुनाव नहीं कंटेस्ट करेंगे, उस दिन से ये सवाल पूछा जा रहा था और शायद वही सच हुआ? नविका जी, आपने तो कई बार प्रशांत जी से बातचीत की है और आपको उनका वो स्टेटमेंट भी याद होगा जब उन्होंने कहा था कि या तो अर्श पे या फर्श पे। एंड आपको ये भी याद होगा कि जब जनसुराज का ये अभियान शुरू हुआ तो हमारा प्लान यही था कि हम लोगों को बताएं कि बिहार में कंटिन्यूअस 35 सालों की बदहाली का क्या कारण है। अभी जो मेरे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, ये जीत फलाने की है, ये जीत चिल्लाने की है, लेकिन क्या किसी ने कभी इस बात का उत्तर दिया कि पिछले 35 सालों से बिहार लगातार देश में पर कैपिटा इनकम के स्केल पर सबसे पिछड़ा राज्य है। जिन लोगों ने इतने जोर जोर से सीने ठोक कर कहा कि हमने फलाना किया, हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया, उन्होंने ऐसा क्या किया कि बिहार सबसे पिछड़े दर्जे पर 35 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, जब से नीतीश जी ने शुरू किया अपना राज, और आज भी है। तो बिहार की जनता को और बिहार के प्रबुद्ध लोगों को ये समझने की जरूरत थी, जिसे हमने समझाने की कोशिश की। पर आप समझा नहीं पाए। समझे पर जो रुझान आ रहे हैं ये बता रहा है कि आप समझा नहीं पाए, और इसीलिए मैं समझ पा रही हूं, अर्श पे या फर्श पे जरूर कहा था प्रशांत किशोर जी ने, लेकिन अर्श और फर्श का जो ये अब खेल नजर आ रहा है, क्या ये फर्श पर आप इसीलिए हैं क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े? बात मैंने उनकी सुनी, पर मैं उस बात से अलग विचार रखती हूं। अगर वो लड़ते तो शायद ये रिजल्ट बेटर होता, मैं ऐसा मानती हूं, तमाम एनालिस्ट ऐसा मानते हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, जो आप मानते हैं, आप सारे एनालिस्ट जो मानते हैं, मैं आपके भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन जन स्वराज की अपनी भी एक चाहत है, अपना भी एक रास्ता है, और उसके अनुसार अगर प्रशांत जी लड़ते और हम कुछ सीट जीत भी जाते तो भी हमारी लड़ाई तो यही रहती जो अभी चल रही है। लड़ाई हमारी ये नहीं थी कि हमें 2 सीट आएगी या 5 सीट आएंगे या 10 सीट आएंगे। लड़ाई हमारी ये थी कि क्या लोग हमें समझ पाएंगे, और उस लड़ाई में सर्टेनली हम सक्सेसफुल नहीं हुए। हम फिर से इस बात का विचार करेंगे और फिर से इस बात की शुरुआत करेंगे कि लोगों को समझाने का कोई बेहतर जरिया, कोई बेहतर तरीका निकालें। और जहां तक जन स्वराज की सार्थकता की बात है, जन स्वराज के इस अभियान की सार्थकता तो आपको वैसे ही समझ में आनी चाहिए, और आपको इस बात को खुद ही बताना चाहिए कि पूरे इलेक्शन की मनोवृत्ति हमने इस पूरे प्रोसेस में बदल दी है। फिलॉसफी तब अच्छी लगती है जब चुनाव ना हो। चुनाव में नंबर होते हैं, और नंबर इस वक्त आपका 0 नजर आ रहा है मुझे लीड्स में स्क्रीन पर, और जब 0 नंबर होता है तो स्ट्रैटेजी पर सवाल उठते हैं